प्रीति सिंह। रांची से दिल्ली जा रहा रेडबर्ड एविएशन का एक एयर एम्बुलेंस चतरा जिला के सिमरिया थाना इलाके के कर्माटांड गांव के पास स्थित जंगल में कल देर शाम को क्रैश हो गया। इस एयर एम्बुलेंस का एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से संपर्क टूट गया और इस एयर एम्बुलेंस ने रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान विमान का संपर्क शाम 7:24 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अचानक टूट गया है। विमान में कुल 7 लोग सवार थे। संपर्क टूटने के तुरंत बाद विमानन अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। लापता विमान की लोकेशन का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तत्काल सर्च और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। ईडीसीएपी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां, नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एयर एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में एम्बुलेंस पर सवार मरीज, उनके परिजन, डॉक्टर, नर्स और क्रू मेंबर के अलावे पायलट भी शामिल है। हादसे में मारे गए लोगों में पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत, को पायलट कैप्टन सबराजदीप सिंह, मरीज संजय कुमार, मरीज की पत्नी अर्चना देवी, मरीज का भांजा धुरू कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा के नाम की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस सिमरिया थाना इलाके के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था। तभी अचानक मौसम खराब हो गया। तेज आंधी, बिजली की चमक और बारिश के बीच एयर एम्बुलेंस संतुलन खो बैठी और करमटांड जंगल में क्रैश कर गई। Sir, what are the details that you have in the plane crash and what are the number of deaths received? Actually, we got the information around 10 o'clock that one plane has crashed in our area, but we were not very much sure. So, with the time we got the information from the villagers that accident has happened, and our team has rushed to the spot. And rushing the spot was a bit difficult, reason being considering the terrain, it's a quite difficult patch. But we asked our ambulance team and the doctor's team has arrived, and we got the support from the Latehar also side. And we cordoned the area. We got our forces. We cordoned the area. We tried to protect the persons who were there because we didn't know whether they are alive or dead. But the moment the doctor has declared them dead, then our priority has changed, and we tried to rescue them from this plane, and we have shifted them to the hospital. Now the Delhi team will come for the investigation purpose, and they will do the investigation, and they will try to recover the black box, and they do their own work. And till that time, we have to protect this area, so we have deployed large number of forces over here, and we'll keep this PO protected. And the total number of deaths, if you can tell us? Total number of deaths 7. And what are the post-incident SOPs that you are following? The post-incident SOP, the most important thing that this area should not be disturbed for the investigation purpose, and for that reason we have deployed the forces over here. The magistrate has been deployed, and the officers are already here. So we are waiting for the Delhi team. Once they will come, we'll cooperate them in the investigation. Was the rescue a bit difficult because of the terrain and the jungle area? Obviously, rescue was difficult because coming here was not easy. It's not accessible road. So vehicle is like 2 and 3 kilometers away from this place. So getting the things was a bit difficult, but we managed. Thanks. उस समय अचानक मौसम भी खराब था और पूरा क्रैश की आवाज़ आया। पूरा लगा कि वो प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश किया, इस तरह के फील हम लोग का हुआ। उसके बाद बारिश होने लगा। कोई देखा नहीं, हम लोग पूरा आदमी फोन पूरा हुआ, पूरा खोजबीन हुआ। तो लास्ट में आए तो सामने 2 पार्ट्स ऊपर मिला गाड़ी प्लेन का। उसके बाद खोजते इधर आ गए, देखिए यहाँ प्लेन पूरा क्रैश हो गया। बकोरिया में उनका दुकान था, वहाँ पे आग लग गया। आग लगने के कारण मुझे लगाए थे यहाँ से नाभि तक जलने के कारण मतलब देव कमल में एडमिट हुए। देव कमल में स्थिति शुरू में सामान्य था, उसके बाद स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो विचार हुआ कि हाँ इनको से ट्रांसफ़र करके दिल्ली ले जाया जाए। तो दिल्ली के लिए बात हुआ प्लेन से, तो 8 लाख में ये बुक हुआ। 7:10 में वहाँ से चले। इसमें मेरे संपर्क के 3 आदमी थे, बहना और उनका एगो भागना। तो उधर आवाज़ आया था एक अजीब तरह का, तो सारे लोग आवाज़ सुनने के बाद सब आपस में चर्चा करने लगे कि क्या चीज़ का आवाज़ है। फिर उसी दरमियान यहाँ पे बगल में एक बस्ती है करमटांड, यहाँ से फ़ोन आया कि नहीं हम लोग देखे कि एक जो है सो जहाज़ गिर रहा है। तो यही बात चारों तरफ चर्चा में फैल गया
और सारे लोग जो है से फिर जंगल में आए, 2-3 घंटा पूरा जंगल में खोजबीन की, तब जाके यहाँ पे लोग देखा, फिर सारे लोग यहाँ पहुँचे। हम लोग घर पे छत पे खड़ा थे तो अचानक ऊपर देखे तो कुछ रेड कलर का उधर से आया और अचानक लगा कि पूरा बम फटने जैसा आवाज़ आया। तो हम लोग को लगा कि कोई प्लेन उलेन होगा, क्रैश किया। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते आए तो देखे। तो जब हम लोग यहाँ आए देखे हैं तो ये एरिया काफ़ी इंटीरियर में है। आप देखो कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुँचे हम लोग तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज़ को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफ़ी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे SSB की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज़ को वहाँ तक पहुँचाया है, मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहाँ तक उनको पहुँचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज़ जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहाँ तक पहुँचा दी। क्या कंडीशन थी सर इनसाइड प्लेन अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? अब प्लेन का कंडीशन विसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये गिरा है। तो यहाँ से तो बस यही है कि हम लोग अगर बचा है जो भी, उसको बच तो कोई पाया नहीं। और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है। और इस तरह से ये डीप इंटीरियर फॉरेस्ट का पार्ट है और बुशेस हैं काफ़ी सारे। और इसमें हम लोग रात के टाइम पे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी कठिनाई तो था ही। लेकिन ठीक है, हमारे जवान सब डटे रहे और उन्होंने सब बॉडीज़ को निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया है अभी। क्रैश के बाद जो पहुंचने का गोल्ड और रांची से दिल्ली ले जा रहे थे, उसी कारण यहाँ घटना हुई। कितने लोग सवार थे? मेरा फैमिली 3 आदमी थे। अच्छा। और 2 डॉक्टर, एक नर्स है, एक डॉक्टर है और 2 पायलट हैं। कि सारे लोग गुजर गए? सारे लोग। टोटल कितना लोग? आपको टोटल 7 आदमी। मृतक के आप क्या हुए? हम रिश्तेदारी थी हैं और मेरे भगना लगे। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम उन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर ऑफ डेथ अगर आप बता सकें? टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं? और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। कहाँ के ये लोग थे, कुछ आइडेंटिफाई हो पाए? बाकी डिटेल्स जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही वो एयर विमान है जो क्रैश हुआ। एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे और शाम के 7:24 पर यह संपर्क टूटा। ये जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चतरा के कर्माटांड के जंगल में ये विमान क्रैश हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि मरीज सहित 7 लोग इसमें सवार थे और 7 की मौत की खबर भी सामने आई। तो चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। शाम 7:24 पर टूटा है संपर्क, जिसके बाद चतरा के कर्माटांड के जंगल में ये विमान क्रैश हो गया। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि वजह क्या कुछ रही इसके पीछे ये फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो रांची से दिल्ली ये एयर एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था। मरीज को लेकर ये एयर एम्बुलेंस रांची से निकली थी, दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन 7:24 पर ही संपर्क टूट गया है, जिसके बाद ये विमान क्रैश की खबर आई। तो यही वो विमान है एयर एम्बुलेंस जो क्रैश हुआ है।
मौजूद हैं सिमरिया थाना क्षेत्र के कसारी पंचायत के करमटाड़ गांव बोले या फिर ये जंगल में, जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जो रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। और उस एयर एम्बुलेंस में 7 लोग थे, पायलट और सह पायलट के साथ जो जले हुए मरीज थे उनके परिजन मौजूद थे। और इस घटना स्थल पर अभी जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके मामा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं इस बारे में। बताइए कि कैसे कैसे घटना घटी, वो लोग कब वहां से चले थे रांची से? रांची से 7 बजे लोग चले थे। उसके बाद जब हम लोग को न्यूज से पता चला, उसके बाद हम लोग का घर यही जबड़ा पंचायत पड़ता है, तो उसी के माध्यम से ये बगल में है गांव, इसी की जानकारी के अनुसार हम लोग आए हैं। तो अभी प्रशासन की टीम आपके साथ मौजूद है, और क्या कर रही प्रशासन की टीम? अभी प्रशासन जो अपना काम है, लाश वगैरह वो जो निकाल रही है, ये सब काम कर रही है। देखे कि उनके जो मृतक हैं और उनके जो परिजन हैं, उनके मामा हमारे साथ बात कर रहे थे, घटनास्थल पर मौजूद हैं। और हमारे साथ एक समाज सेवी मनोज चंद्रा जी हैं जो मौके पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मनोज, क्या पूरा मामला है? देखिए, जैसे जानकारी मिली हम लोगों को कि संजय साहब जिनका घर चंदवा है और उनका बर्निंग केस था, 65% लगभग जल गए थे। तो इमरजेंसी केस में उनको जो से लिफ्ट करके वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जा रहा था। इसी 7 बजे रांची से टेक ऑफ की उनकी एयर एम्बुलेंस और 7:15 में यहाँ के एक्सीडेंट हो गया। कुल 7 लोग थे, जिसमें 3 तो एक तो संजय साहब के साथ उनके साथ 2 अटेंडेंट थे, एक डॉक्टर थे, एक उनके नर्सिंग स्टाफ थे और 2 पायलट थे। तो बड़ा दुखद घटना है और मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ कि जिस परिवार के साथ दुर्घटना घटी है वो परिवार मेरे जानकार के हैं। शंभू साहब जी हम लोग के झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? जी, ये लातेहार और चंदवा, लातेहार और चतरा जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। एयर एम्बुलेंस लाइन था, वो मतलब क्रैश कर गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही लातेहार एसपी कुमार गौरव और डीसी उत्कर्ष गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से घटना घटी है वो काफी परिजनों पर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि पुलिस जो है मलबे से शव निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और देर रात में 4 डेड बॉडी निकाली जा चुकी थी और बाकी जो शेष बॉडी है अब सुबह हो चुका है और लाइट के दौरान बाकी शेष शव को निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल क्या रेस्क्यू जारी है? वहां पर कौन कौन पहुंचा है? जी, रेस्क्यू अभी जारी है। लातेहार डीसी, एसपी और चतरा एसपी, डीसी वहां घटनास्थल पर पहुंचकर एसएफएल टीम वहां पहुंची हुई है और पूरे घटना कैसे घटी है उसकी तहकीकात की जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद परिजनों पर एक बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि घटना के बाद जो है उनके परिजन में काफी मायूस हैं और मलबा निकालकर शव को निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पूरा घटनाक्रम क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, साथ ही रेस्क्यू भी जारी है, तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। तस्वीरें अपने आप में बता रही है कितना दर्दनाक ये हादसा रहा। देखिए, ये एम्बुलेंस है, मरीज को लेकर दिल्ली जा रही थी, रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन 7:24 पर ये जो संपर्क था एयर एम्बुलेंस का वो टूट गया और ऐसे में ये विमान हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया है। टेक्निकल क्या कुछ वजह रही ये अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया है, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है।
लातेहार जिला और चतरा जिला के बॉर्डर पर एक बड़ा एयर एम्बुलेंस का बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें सवार 7 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। घटना की सूचना जब लातेहार पुलिस और जिला प्रशासन और चतरा पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली, घटनास्थल पर कूच कर गए और रात में ही राहत कार्य वहां प्रारंभ कर दिया गया। हालांकि अभी हम इस वक्त उनके मृतक संजय साव हैं, उनके परिजन के घर पे आए हुए हैं। यहाँ स्थिति है जी कि यहाँ काफी इन लोगों मातम सी परिदृश्य सामने दिखाई दे रही है। हम संजय साव के पिताजी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे घटना घटी थी और कैसे जले थे वो। उनका होटल था, वो आग लग गया स्वाति लाइन से। इसके बाद वो आग लगा से दौड़ के भागने के लिए चाहा, बस धर लिया पैंट, जल गया यहाँ से नीचे। और इसके बाद हम लोग ले गए हॉस्पिटल देव कमल में इलाज चल रहा था, तो हम लोग को समझ में नहीं आया। इसके बाद एयर एम्बुलेंस किए और दिल्ली जा रहे थे। जाहिर सी बात है कि परिजन काफी मातम की स्थिति में है और सवाल उठता है कि जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है, कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसको जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर चूक कहां से हुई है। हालांकि घटना के बाद जो है वहां पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य और मलबे से शव को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइए हम जानते हैं, हमारे उनके परिजन है, संजय साव के परिजन हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरह से हादसा हुआ, क्या घटना घटी और कैसे वो जले थे। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगा था, उसमें जल गया था मेरा भाई। तो हम जो है 16 तारीख को भर्ती किए थे देव कमल में। तो वहाँ ट्रीटमेंट चला 5-6 दिन, लेकिन हम लोग को सही नहीं लगा और स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। हम लोग उसको दिल्ली ले जा रहे थे, तो बाय रोड ले जाने में दिक्कत था, बोला कि नहीं जा पाएगा। हम लोग एयर एम्बुलेंस किए, ले जा रहे थे। हम लोग 7:07 में एयरपोर्ट में उसको बैठाए हैं। जब वहाँ से प्लेन उड़ा है, हम लोग वहाँ आए हैं, घर आए, अब पता चला फोन लगा रहे, नहीं लग रहा था। पता चला कि रडार से बाहर हो गया है वो, बाद में पता चला क्रैश हो गया। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इस परिवार पर एक बड़ा पहाड़, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं प्लेन जो एयर एम्बुलेंस जो क्रैश किया है वो जांच का विषय है। संजीव कुमार गिरी, जी मीडिया, लातेहार। तो विमान में कौन कौन थे सवार? विकास कुमार गुप्ता जो कि डॉक्टर हैं, वो भी इसमें सवार थे। सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ, कैप्टन विवेक विकास भगत जो कि पायलट थे। तो चतरा में ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विमान में कौन कौन सवार थे ये भी हम आपको बता रहे हैं। अर्चना देवी मरीज की परिजन थी, ध्रुव कुमार मरीज के परिजन थे, वो भी इसमें सवार थे। कुल 7 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी इन विमान क्रैश हादसे में मौत हो गई। तो ट्रीटमेंट के लिए मरीज को ले जाया जा रहा था दिल्ली, रांची से दिल्ली ले जाया जा रहा था और ऐसे में ये विमान क्रैश हो गया है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।